the Easy Trick channel for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. This is the next part of the statistical foundation, and already all the videos available under the playlist and the link available into the description box, so you will check it out all the videos properly. And this is the correlation topic of the stats. This is the next part of the Spearman rank correlation. In the previous video we will discuss about the rank correlation, that what is the rank correlation and why it is used into the correlation, because on that particular condition there is the single values available. But in this we will discuss about that if any students having the same number and having the same ranks, that is called the repeated ranks or the tied ranks. So on that time what we will use into the solution of the statistical foundation. So the first part is related with the definition, that if any value more than one value or one variable or both variables are repeated having the same rank, then you will use that particular formula. That formula is very simple. The previous tutorial link available into the description box, so those who don't see the previous part, kindly see the previous part with the single formula, that is the 1 minus 6 summation d square divided by square root of n. So square root of n is not available over there, only n is there, and n is only over into the previous part. So in this part we will discuss about the tied ranks or the variable ranks, repeated ranks. So what will we use? The formula is a little bit more enough spaces, that is add of the 1 by 12 with the repeated rank 1 with the repeated rank 2 it is available. मीन्स कि मान लो कि अगर 60 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसके लिए 1 टाइम आएगा, 72 टाइम्स रिपीट हो रहा है फिर वो भी इंक्लूड होगा, 80 कोई नंबर है तो वो भी रिपीट हो रहा है तो वो भी होगा. ऐसे नंबर्स कोई भी रिपीटिशन में जा रहे हैं अगर आपके सम के, तो डेफिनेटली वो रिपीटिशन में आएंगे ही आएंगे और रिपीट में आएंगे. सो समेशन डी स्क्वायर भी आपको पता है. नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन भी n पता लग चुका है. m1 m2 mn हमने भी बात की है कि नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यूज आर रिपीटेड इन एनी ऑफ द सीरीज जब होंगी तो फॉर्मूला हमने ये यूज़ कर. नेक्स्ट हम ये सम देखते हैं अब रिपीटेड रैंक्स का ही. रिपीटेड रैंक्स में ये सम है, देखिए कि ऑटोमेटिकली x की वैल्यूज़ या y की वैल्यूज़ देखोगे तो रिपीटेड हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं. देखिए 16 16 16, y सीरीज़ में भी 15 2 टाइम्स रेपिटेशन है, इवन 3 टाइम्स है, और 9 2 टाइम्स रेपिटेशन है. जब रेपिटेशन भी किसी सीरीज़ में आ गई और उसने आपको बिना हिंट के बोला कि कोरिलेशन किस सीरीज़ का है, मान लो पूछते हैं कार्ल-पर्सन्स का है कि स्पीयरमैन का है, तो आपको पता है कि रैंक कोरिलेशन के साथ वर्क स्पीयरमैन करता है, कार्ल-पर्सन्स नहीं करता. तो ट्रू आंसर होगा हमारा स्पीयरमैन का है. सिंगल सीरीज़ को देख के भी MCQs पुट डाउन किए जा सकते हैं. सो सबसे पहले हमने सोल्यूशन में ये चीज़ मेंशन कर देनी है कि इन द y सीरीज 16 हैज़ बिन रिपीटेड in the variable x and the 15 has been repeated 3 times in and also 9 has been also repeated in the second series by the 2 times. So this is the case of the repeated ranks or the tied ranks. अब देने कैसे हैं बात उसकी करते हैं. बहुत ही सिंपल है. देखिए rx की ये r की वैल्यू हमने दी है, ये y की वैल्यू दी कैसी है. अब बात तो ये करनी है ना हमने कि दिया कैसे है हमने. वैल्यूज़ तो ये वाली हैं हमारे 48 48 48 है. सबसे पहले ये हमने x की वैल्यू लेनी, फिर y की, और इसको नंबरिंग देनी है. सबसे पहले नंबर 1 पे देखो क्या आ रहा है, सबसे छोटी वैल्यू है 1, तो रैंक इसको मिल गया 1. अब जो सेकंड छोटी वैल्यू है वो हमारी है ये 16, रैंक गया 2, फिर थर्ड 3, और फिर 16 को ही गया 4, मतलब 2 3 4. अब रैंक देना कैसे है, देखो पहले तो इसकी पोजीशन दे दो. पोजीशन है इसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 2 3 4. कितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं, 1 2 3, डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ऑटोमेटिकली 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स जहाँ जहाँ 16 होगा वहाँ पे हम 3 लिख देंगे. अगेन आई रिपीट द थिंग्स,
12 है सबसे छोटा, 1 रैंक गया उसको, 16 आया सेकंड नंबर पे। सेकंड इसको देने के बाद हमने देखा कि 16 फिर से रिपीट हो रहा है, तो थर्ड पोजीशन उसको चली गई। 16 को चेक करने के बाद फिर एक बार चेक किया आपने सीरीज़ को कि हाँ 16 से बड़ा कोई है, लेकिन 16 ही अभी अवेलेबल है, तो 4 नंबर उसको चला गया। अगर ऐसे ही रेपिटेशन और भी होती तो हम उसको भी प्लस करते। पोजीशन प्लस करनी है 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट रिपीटेड रैंक अवेलेबल इनटू दिस सीरीज, दैट इज 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय 3 एंड 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स कैलकुलेट करके आया 3 और 16 को हर जगह रैंक चला गया 3। ठीक है, अब क्योंकि 2, 3, 4 पोजीशन जा चुकी है बट सेम रैंक के साथ, इट्स ओके। फिफ्थ पोजीशन पे हम देखते हैं कौन है। फिफ्थ पोजीशन पे है आप 16 के बाद 25 की कोई रेपिटेशन नहीं है, डायरेक्ट आ गया। उसके बाद आ रहा है जी हमारा 34 एज पर द असेंडिंग ऑर्डर। 6 पोजीशन इसको चली गई, ये भी रिपीट नहीं हो रहा। अब 7 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा जो छोटा होगा, तो हमारी 7 पोजीशन पे एलिमेंट आ रहा है 40 भी रेपिटेशन में नहीं है, इट्स ओके, वो सेट डायरेक्टली आ जाएगा। 48 आया, 48 को मिल गया 8th रैंक, वो भी रिपीटेड नहीं है। 48 के बाद बचता है 57 और हमारे रैंक इस तरह से 1 से लेके 9 तक आ गए हैं, बट रेपिटेशन 3 क्यों लिखा हुआ है, यू नो वेरी वेल। सेम एज विद द वाई सीरीज। सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट देखो, सबसे छोटा एलिमेंट है 6, रिपीटेशन नहीं है, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद है 8, 2 क्योंकि रेपिटेशन इसकी भी नहीं है। 8 के बाद हमारा एलिमेंट आ रहा है 9, 9 को सबसे पहले हमने 3 दिया क्योंकि 1 2 मिल चुका है 3, और 9 ही रिपीट हो रहा है, इसको मिल गया 4। क्या 9 और कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं, 2 टाइम्स रिपीट है, तो 3 + 4 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 आएगा आंसर 3.5, तो दोनों को रैंक मिल गया 3.5। फाइन। उसके बाद हमारा 9 के बाद हमें चेक करना है कौन सा एलिमेंट छोटा है, क्योंकि 4 तक पोजीशन जा चुकी थी, 5th पोजीशन गई 13 को, और इसको रैंक भी वही मिल गया क्योंकि ये रेपिटेशन नहीं कर रहा। 13 के बाद अब जो उससे बड़ी वैल्यू है वो है 15। 5th पोजीशन इसको जा चुकी है, सबसे बड़ी वैल्यू जो 15 मिल रही है उसको गया 6 एंड 7। एक बार और सीरीज चेक कर लीजिए कहीं कोई और रेपिटेशन तो नहीं है 15 की। देखोगे तो डेफिनेटली लास्ट में जाके फिर से 15 मिल रहा है हमें यहाँ पे, तो 6 7 ऑलरेडी पोजीशन दे चुके थे, इसको मिली 8। 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय 3, ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ रहा है 7, तो तीनों को मिल गया 7। हमें रैंक तीनों पोजीशंस को मिला के मिल रहा है क्योंकि 8 तक पोजीशन जा चुकी है। अब पोजीशन जानी है 9, 15 से बड़ा है 20 रेपिटेशन में नहीं आ रहा, तो उसको चला गया 9। उसके बाद 20 के बाद देखोगे रेपिटेशन में जो कोई जा रहा है, नहीं जा रहा ना कुछ भी, तो इससे बड़ा है 24, तो इसको रैंक चला गया 10। तो अब सारी पोजीशंस देखो हो चुकी हैं हमारी, कंप्लीट रैंक सबको मिल चुके हैं। तो इसके बाद आप वही फॉर्मूला RX - RY करोगे तो D² निकलेगा। अब वो है कि हमने करना क्या है, नीचे आपने लिख लिया है कि 16 हैज़ बीन रिपीटेड इन X सीरीज बाय 3 टाइम्स, सो M1 आएगा, M2 आएगा, M3 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो RX की सीरीज में हमें मिला था एक पार्ट, तो M1 तो इसको ही इशू हो गया एज पर द फॉर्मूला, M1 इसको इशू हो चुका है। अब M2 क्या इशू हो सकता है, डेफिनेटली इशू होगा क्योंकि RY में भी रेपिटेशन है। पहले है हमारी रेपिटेशन जो 9 की 2 टाइम्स। फाइन, ये हमने लिख लिया। M2 की वैल्यू 2 और M3 भी होगा क्योंकि 15 भी रेपिटेशन में हो रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं इस सम को। इट्स वेरी सिंपल, ये देखिए फॉर्मूला हमें पहले ही मिल चुका है कि M1 M2 M3 तक आना ही आना है। वैल्यू उसकी सेम, M1 क्यूब माइनस M1, M2 क्यूब माइनस M2, M3 क्यूब माइनस M3। इट्स ओके, ये क्यूब आना ही आना है, पार्ट है इसका। M1 में आपको क्या मिला था 3, M2 में हमें क्या मिला है ये दोबारा देख लीजिए। M1 में 3 टाइम्स, M2 में 9 मिला था 2 टाइम्स, M3 में 15 मिला है 3 टाइम्स। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे हमने पुट डाउन करनी है, देख लीजिए 3, 2, M3 का 3। सब सारे को सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा और स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन का ही आंसर हमें मिल जाएगा 0.81, एंड दैट इज़ द कोरिलेशन से रिलेटेड ही है कि -1 और 1 के बीच में आ रहा है। सो ये भी हमारा एक परफेक्ट पार्ट चला गया है। सो MCQs क्वेश्चंस डिपेंडेंट ऑन द सीरीज ऑल्सो एंड विद द नेम
And this one is the unsolved rank correlation series. So you will try by yourself, and this is the last part of the correlation. And if you have any type of query regarding any statistical foundation or the Python programming, kindly comment it to the comment box. Definitely reply will be given within the 24 hours to all of you. And if you need any other part of starts in the video lectures, kindly ping the message into the comment. Video will definitely upload it into the channel. Otherwise, all videos available into the statistical foundation playlist. So you will check it out and grab your knowledge very well. Hope so you all will like all the videos. So kindly like, share and subscribe the channel. Thank you.